Hello and welcome back everyone. This is here again Vijay, your physics mentor. And now today I'm going to teach you about the gravitation. Gravitation is one of the most interesting topic of physics. And it's going to be very phenomenal. I know that most of the students have phobia in physics. They think that physics is a little bit harder than other subjects. I just try to make it more easier for you. I just try to convert this phobia into mania with the help of simulation and technology. And I'm damn sure once you watch this video, you will fall in love with physics. If you like it, don't forget to subscribe and hit the like button. Now, let's talk about the gravitation. I think in your class, your teacher has been taught you about the gravitation. Then what is gravitation? Gravitation is the force between two bodies which is having mass. And this force is directly proportional to the multiplication of these two masses, multiplication of these two masses m1 and m2, and distance between them square of inversely proportional to the square of distance between them. This is the gravitational formula. Yes, here r is what? R is distance between these two bodies. The bodies which is kept r distance apart from each other and having the mass m1 and m2. Now यहां पर हम समझेंगे कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस की. वंस यू इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. एंड वंस यू डिक्रीज द लेंथ देन डेफिनेटली डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, definitely the force will increase. Yes, and because of the inertia, have you heard about the inertia? Because of the inertia, the body which is having the more mass will attract the another one which is having the low mass. Is it clear to everyone? Now let's understand it. इससे हम simulation से समझते हैं कि क्या होगा. चलिए, now you can see here that this is the, जो आप यहां देख रहे हैं, this is the sun and this is our earth which is orbiting around the sun, जो कि orbiting कर रही है sun के चारों तरफ. Now what you see here, आप क्या देख रहे हैं यहां पर, that this because of the gravitational force this earth is orbiting around the sun. Now you can see other planets also. These planets are rotating. यहां पर moon है और मून यहां पर है एंड नाउ द अर्थ इज हियर, और ये इस तरीके से यहां पर ऑर्बिटिंग कर रही है, यानी कि मून भी आपके अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहा है और अर्थ इज ऑल्सो ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, नाउ यू कैन सी हियर द टू प्लैनेट्स. इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं आप यहां पर. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अर्थ एंड नाउ दिस प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ. Now you can see here the satellite also. This satellite is orbiting around the, ये satellite जो है ये orbiting कर रहा है किसके, अर्थ के चारों ओर orbiting कर रहा है. You can see here. Now one by one हम यहां देखते हैं कि orbiting कैसे कर रहा है. Yes, you can see here the gravitational force. देखिए gravitational force किस तरीके से लग रहा है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स टू द सेंटर, और ये भी टुवर्ड्स टू द सेंटर लग रहा है. तो ये इसके रोटेशन का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो कि इसे नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है. यस, यू कैन सी हियर वेलोसिटी देख सकते हैं आप. वेलोसिटी आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो बता देगा. आप पाथ देख सकते हैं, यहां पर देखिए आप, बिल्कुल आपको सर्कुलर पाथ, सर्कल मिलेगा इस जगह पर पाथ आपको. चलिए यहां पर हम मून के केस में देखते हैं कि मून के केस में कैसा पाथ आपको मिलेगा. ये वेलोसिटी यहां पर देखिए, मून देखिए, और आप यहां देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो अर्थ है, अर्थ की जो पेरीफेरी है या फिर जो लोकस है वो लोकस सर्कल होगा, जबकि हम कन्वर्ट करते हैं इन सभी को, यहां हम वापस से जाते हैं इसी पर और इसे बढ़ा देते हैं.
चलिए अब क्या करते हैं हम यहां पर इसकी लेंथ को कम कर देते हैं, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम कर दिया है, मून और सन के बीच में। डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा और किसका बढ़ेगा, सन का बढ़ जाएगा। और आपका जो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ कोलाइड कर जाएगी सन से, और ऐसा हुआ भी है, यहां पर हमारी अर्थ जो है वो कोलाइड कर गई है सन से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स अगेन फिर से देखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर ये आपके यहां से इसको सैटेलाइट को चला दिया। अब बात सुनिए, यहां अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका सैटेलाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है सन के। जब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हटा देते हैं, आपका प्लेनेट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर उस सैटेलाइट को अट्रैक्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो आपका जो सैटेलाइट है वो बाहर निकल गया ऑर्बिट से, ऑर्बिटिंग मतलब नहीं करेगा और बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही अगर साथ में किसके हो रहा है, यहां अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये खींच लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये भी समझ लें। देखिए यहां पर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स हटा देंगे तो जहां से टेंजेंट आ रही है, यानी कि जहां आप छोड़ेंगे, जहां से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हटेगा वहीं से सीधा निकल जाएगा। यहां से अब ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दिया है हमने तो बिल्कुल सीधा निकल गया है। इज इट क्लियर? सो इसी तरीके से हम सिमुलेशन के थ्रू सारे मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, सारे मोशन को समझेंगे। सिमुलेशन के थ्रू हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे कि हमारा पाथ किस तरीके का होगा, किस तरीके से आपकी बॉडीज रोटेट होगी। अगर आपको ये फुल वीडियो देखना है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Thank you. We'll meet in next video. तब तक के लिए thank you and bye bye.